Speaker is इसकी अपनी वाइज बात है देख लेंगे अगर जरूरत हुई तो अटैच कर. All right. Greetings and praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Thank you. Greetings, Bishop. I am so sorry for being late this morning. It's I was traveling and it's very, very cold. बहुत सर्दी है. बहुत बार ठंड है और ये माजरत करता हूँ थोड़ा सा. Yes. No, yeah. But we're grateful unto God. It's a great blessing to see everyone. Praise the Lord. Pastor Farouk, good morning. God bless Good you. morning. Good morning, sir. Oh, praise the Lord. Ma'am, Nazarene. Nazarene, God bless you. How was your sister, Amber? Yes, she is fine. 100%. So Thank God. yes, thank God. Okay. Greetings. All right. Well, we can get started with prayer and we'll get into the word of the Lord. शुरू करते हैं. आ रहे हो सारे? Okay, perfect. All right. We can get started with prayer. Father, in the name of Jesus, Abu Yesu Kinampar, we thank you, Lord, for this day that you have blessed us with. We thank you right now, God, for the opportunity that we have to teach and understand and study and learn your word. We pray and ask, oh Lord, that you would give us clarity of thought, that you would open our eyes to understand the truth, that you would help us right now, Lord God, in our growth, in our development, and increasing in the grace and in the knowledge of you, oh God. We pray right now for every single person on this call in this classroom. Be glorified, O Lord, in the content and the word. Bless right now, Lord Jesus, every word to land and pierce our hearts, O Lord, with your truth, that we may become more and more like you. Have your way tonight and today, and we'll thank you and praise you for all things. In Jesus' name we pray. Yesu Masih Kinamse. Amen. 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 Okay. Pardon me. I just gotta get myself together here. We are continuing to study the oneness of the Godhead in Christ Jesus. So हम अपनी स्टडी को जारी रखते हैं जो हमने पिछले हफ्ते से शुरू की थी कि खुदाए वाहिद के हवाले से. And of course, this lesson, this classroom, concerns itself with the identity of who Jesus is. So इस क्लास के थ्रू हम ये भी जान पाएंगे कि यीशु कौन है. Jesus was not another God, but he was God in flesh, manifested in flesh, revealed to humanity. यीशु एक दूसरा खुदा नहीं बल्कि खुदा है, बल्कि खुद खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ. Jesus was not the second in the Trinity because the Bible does not teach a Trinity. और ये जैसे कि कहा जाता है कि तस्लीस का दूसरा अखनूम है, पर वो दूसरा अखनूम नहीं है, ना ही वो कोई दूसरी शख्सियत है, क्योंकि बाइबल में तस्लीस नहीं है. Yes, but Jesus was the God of the Old Testament, the invisible God made visible. So यीशु जो है, जब हम देखते हैं पुराने ऐदनामे का खुदा है जो पहले नजर नहीं आता था, लेकिन यीशु में हमें नजर आता है. This is the cornerstone of what we believe as oneness, only Jesus, apostolic believers. So ये एक बुनियादी जुज है
apostolic जो जो तालीम है, उसका रसूली जो तालीम है, उसका बुनियादी जुज है कि यीशु खुदा है। Now, as we began on last week, we began with encouraging all of us to understand how the Bible is written, how it is to be studied and understood, so that this lesson makes sense to us, because this study is a rather deep study. सो हमने पिछली दफा ये सीखा था कि खुदा के कलाम में से कि किस तरह से हमें स्टडी करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। So I did want to, as we get into it, I did want to just remind you, pay close attention to every word that you read and every verse, because all of it is important. सो मैं आपको आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हर एक लफ्ज और हर एक बात जो लिखी हुई है उसकी तरफ आपको बगौर स्टडी करनी है, तवज्जो रखनी है, ताकि आपको समझ आ सके कि खुदा का कलाम है क्या। Now let's begin today with the book of Deuteronomy, chapter number 6. सो हम छठे बाब की तरफ हम बढ़ते हैं, जिस तरह से लास्ट टाइम भी हमने इसको देखा था। इस्तिस्ना की किताब छठा बाब, Deuteronomy chapter 6, and we will read verses number 4 and 5. और उसकी चौथी और पांचवी आयत को देखेंगे हम। सफा नंबर उर्दू की बाइबल में 172 है, चौथी और पांचवी आयत। इस्तिस्ना की किताब छठा बाब, यूं लिखा है, सुन अये इज़राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। Now, this is the children of Israel after they had come out of the land of Egypt. They'd come out of slavery, and God gave them His word, which was the law of God, through the mouth of their prophet Moses. तो याद रहे कि ये वो लम्हा है जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र की गुलामी में से बाहर निकले, तो खुदा ने ये कलाम अपने बंदा मूसा की मार्फत बनी इस्राइल के लिए दिया। And the book of Deuteronomy is the second rehearsal of the law. So it is Moses giving that same law, that same word to the next generation of Israel, which would have been the sons and daughters of the first generation that came out of slavery. So ये जो इस्तिस्ना की किताब है, ये जब हम शरीयत की ये दूसरी किताब है, और ये याद रहे कि ये जो दूसरी जो जनरेशन थी, आने वाली जो दूसरी जो नस्ल थी, उसको लिए दिया गया था ताकि वो जान सकें इस तालीम को। He's telling the sons and daughters the same thing that he told the mothers and fathers. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. तो वो कलाम जो माँ बाप के लिए था, जो बड़ों के लिए था, वही बेटों और बेटियों के लिए, यानी जो दूसरी जनरेशन थी उसके लिए था। और ये कहा गया कि, और ये दोनों नस्लों के लिए था, पहली नस्ल और दूसरी नस्ल के लिए, कि सुन इस्राइल, सुना है इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। Now, why was this important for God to reiterate and repeat to his people that he is one? Why was that important? तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये क्यों जरूरी था खुदा के लिए उन लोगों को बताना कि खुदावन खुदा एक ही खुदा है। It was important because as they were down in Egypt, Egypt was a land of many false gods. ये इसलिए बड़ा अहम और जरूरी था कि बनी इस्राइल मुल्क मिस्र में गुलामी की हालत में थे, और याद रहे कि मुल्क मिस्र में बहुत सारे खुदाओं की परस्तिश की जाती थी। In Egypt, they worshipped a trinity of gods. They worshipped Iris, Osiris, and Horus. और उन बहुत सारे खुदाओं के साथ जो एक तरह की जो तस्लीस थी, वहां पर ओसाइरस, साइरस और ऑसिरिस की, वो उनकी भी वो वर्शिप करते थे। And for 430 years, this is what God's people, the Hebrews, the Israelites, this is what they were under. और ये 430 साल जब वो मुल्क मिस्र की गुलामी में थे, तो बनी इस्राइल इस किस्म के असर के अंदर वो रहे थे। This system of false worship, and God did not want his people going into the promised land
to function under this system of false worship. So the first thing he told them when they came out of Egypt is that the Lord your God is one Lord. सो इसलिए कि वो चूंकि वो इस ये जो गलत किस्म की जो तालीम का एक जाल था, एक सिलसिला था, उसके अंदर मुसलसल रहे थे। अब वो जब निकल के आए तो लाजिम बात थी कि उन पर ये असरात थे, तो खुदावंद उन असरात से, उस बुरी जो गलत तालीम थी उसके असरात से निकालने के लिए उनको जो सही जो तालीम है उसकी वो बुनियाद रख रहे थे ताकि वो उसको जान सकें। From a historical perspective, God's people, the Israelites, the Hebrews, the Jews, have always been a monotheistic people, meaning they've always only worshiped one God. सो याद रहे कि जो यहूदी थे, जो इजरायली थे, वो एक खुद हर वक्त या ना हर तरह से वो एक खुदा को मानने वाले लोग थे। जब हम मोनोथेइस्टिक बात करते हैं या एक खुदा की बात करते हैं तो उस हवाले से बात की जा रही है। Now, over the years, they lost their way and got involved with the heathen nations around them and began to engage in idolatry. But they knew that it was wrong because they knew that God was one. लेकिन जब साल गुजरते गए तो फिर वो मुख्तलिफ और खुदाओं की भी इबादत करने लगे, हालांकि वो जानते थे कि खुदा एक ही है जो उनका पैदा करने वाला है। So this is God establishing his identity with his people. सो खुदा अब यहां पर अपनी जो शनाख्त है वो उन पर उनको जाहिर कर रहा है, बता रहा है अपने लोगों को कि उनका जो खुदा है वो कैसा है, किस तरह का है। Now, in theology, there is a principle called the principle of first mention. सो ये जो थियोलॉजी है, ये जो मजहबी जो तालीम है, इसके हवाले से एक जो प्रिंसिपल है उसके हवाले से हम बात करते हैं। That means that the principle of first mention means that the first time an idea or a theme is mentioned in the Bible, it really sets a precedence, a thematic precedence for how God functions or how he operates or who he is. सो ये जो पहला असूल है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये जाहिर करता है कि सबसे पहले कौन सी चीज किस तरह से कैसे पहले आएगी, जो पहली चीज है वो कैसे होगी। जो ये जो असूल है उसके तहत हम देखते हैं। It often sets the pattern for how the rest of the Bible will be understood, or sets the pattern for how God would be understood through the rest of the Bible. सो इस तरह से इस पैटर्न के थ्रू जो है वो हम जो पूरी जो बाइबल है, जो पहला जो असूल है, जो पहला जैसे कहते हैं ना देग का पहला जो दाना है, उससे पता चलता है कि बाकी जो देग वो किस तरह की होगी। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो पहला असूल है, इससे आप अंदाजा लगाते हैं कि वो पूरी जो बाइबल है या जो खुदा के हवाले से जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा अगर आप पहले कोई ठीक तरह से खोलते हैं। That's the principle of first mention. And what we have here in Deuteronomy, the principle of first mention fits with that, because God is saying the Lord your God is one Lord, and you see that theme throughout the rest of the Bible. तो उसी असूल के तहत ये जो तालीम है ये मुतारफ करवाई जा रही है ताकि आप यहां से शुरू हों कि खुदावंद हमारा एक ही खुदा है, और इसी असूल को सामने रखते हुए आप पूरी बाइबल में आपके जहन में होगा कि जो पहला असूल मुतारफ करवाया गया है एक खुदा के हवाले से, वो इसी तरह से पूरी बाइबल में भी ऐसा ही होगा। ये नहीं कि आगे जाके तब्दील हो जाएगा। If he would have said the Lord your God is three Lord, then those who believe in the Trinity would have a very strong case. But अगर यहां पर जो इस असूल के तहत यहां पर जब स्टार्ट लिया जा रहा है, जब पहले बताया जा रहा है, अगर ये कहा जाता
कि सुन है इस्राएल, खुदावन तुम्हारा खुदा जो है वो एक में तीन या तीन में एक जिस तरह का असूल बयान किया जाता है, तो फिर हम पूरी बाइबल में उसी पैटर्न के तहत इस असूल को देख सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। But he does not say that. He says the Lord our God is one Lord, and thou shalt serve him, thou shalt love him, not them. Thou shalt love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यहां ऐसा नहीं है, यहां उसके बरक्स है। यहां पर कहा गया है कि हमारा खुदावंद खुदा एक ही खुदावंद है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये नहीं कहा खुदाओं से, या एक में से तीन, तीन में एक, उनसे मोहब्बत रख, एक अपने खुदा से मोहब्बत रख। Then he says that these words should be in your heart. So God wants it in our heart to believe that he is one Lord. So उसके बाद फिर खुदा ने कहा कि ये बातें जिनका हुक्म मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। Now let's go to the book of Ephesians, chapter number 6. So इसके साथ जब हम नए ऐहदनामे में इफिसियों के खत में आते हैं और उसका जो छठा बाप है उसकी तरफ हम नजर दौड़ाते हैं, तो देखते हैं यहां पर इफिसियों 6 बाप और उसकी आयत नंबर हम देखते हैं, chapter 6. Yes, Ephesians chapter, Ephesians chapter 4, chapter 4 and verse, let's read verses 4, 5, and 6. चौथी, पांचवी और छठी आयत जो है इफिसियों के खत के चौथे बाप की सफा नंबर 186 में यूं लिखा है, एक ही बदन है, एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। Now, notice the theme, one body. That's the body of Christ. That's the church. One spirit. That's the baptism of the Holy Spirit. तो आप यहां पर गौर करें, जो थीम है, जो इसका जो लुबे लुबाब है, वो एक है, एक ही बदन है जो कि कलीसिया है। कलीसिया एक बदन है, और इसी तरह से एक ही रूह है, यानी पाक रूह, एक ही रूह है। One Lord, that is our Lord Jesus Christ. One faith, that is the belief system that the apostles taught. That's the apostolic faith. And one baptism, that is the baptism in Jesus' name, receiving the gift of the Holy Ghost. सो इसके साथ वो आगे जाकर के बयान करता है कि जब एक बदन, एक रूह है, तो इसके साथ ही एक ही खुदावंद है जो कि यीशु मसीह है, और फिर एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा है जो कि यीशु मसीह के नाम का है। One God who is the Father of all. And that one God who is the Father of all, his name is Jesus Christ. तो एक ही खुदा बाप है, खुदा है जो बाप है और जिसका नाम यीशु है। Now, I said something that maybe you didn't quite understand, so let me say it again. The one God who is the Father of all, his name is Jesus Christ. तो एक चीज जो शायद आप ना उसको अच्छी तरह से समझ सके, मैं इसको दोबारा से आप करता हूं कि एक ही खुदा बाप है जिसका नाम यीशु है। Now you may say, well, wait a minute, because Jesus was the Son of God, how could he be also the Father? आप कह सकते हैं कि एक मिनट रुकिएगा जरा, क्योंकि यीशु जो है वो तो खुदा का बेटा है, वो कैसे बाप हो सकता है? Let's read about that. Let's go to the book of Isaiah chapter 9 and verse number 6.
चले इसको हम देखते हैं यशाया के सहीफे में, बुक ऑफ आजाया chapter 9 और उसका 9वां बाब and verse number 6. और उसकी जो 6ठी आयत है, सफा नंबर 667, यहाँ पर 6ठी आयत में कहा गया है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का मुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा. Now, this verse of scripture, no doubt, is a prophecy concerning the coming of the Messiah, our Lord Jesus Christ. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि खुदा के कलाम का ये हिस्सा पेश गोई के तौर पर पेश किया गया है, जो कि मसीह यीशु के हवाले से है. Most every person, every serious Bible student would agree that this verse is referring to Jesus. और जितने भी खुदा के कलाम को जानने वाले हैं, ये समझने वाले हैं, वो इस बात पर एग्री करते हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जो हिस्सा है ये खुदावंद यीशु के हवाले से कहा गया है. Unto us a child is born, unto us a son is given. That's Jesus. This is a prophecy concerning Jesus now. और हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, ये खुदावंद यीशु के हवाले से ही है. The child was born, and 33 and a half years later on the cross of Calvary, the son was given. He was given as a sacrifice for our sins. और हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और फिर तवल्लुद होने के बाद 33 साल की उम्र में वो सलीब पर उसको दे दिया गया, यानी बख्शा गया. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. और उसके नाम का जिक्र यहां पर किया गया है कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा. Notice the designations that would be given to Jesus, or what he will be, what his name will encompass as a reference to his identity, the mighty God. तो उसकी जो शनाख्त के तौर पर उसको ये जो आइडेंटिटी, जो उसको शनाख्त दी जा रही है, याद रहे कि इसमें कहा गया है कि वो खुदाई कादर है, अब्दियत का बाप है. So he would not just be just the Son of God, he would also be the mighty God. सो वो सिर्फ बेटा ही नहीं, खुदा का बेटा ही नहीं उसको कहा गया, बल्कि उसे खुदाई कादिर भी कहा गया है. Then it says, the everlasting Father. और फिर यहां पर उससे ही कहा गया है कि वो अब्दियत का बाप होगा. Now, how could Jesus, who was the Son of God, who never got married, never had a wife, and never have any children, how could he be referred to as the everlasting God? The everlasting Father, the everlasting Father. सो वो जो खुदा का बेटा है, यानी खुदावंद यीशु मसीह, ना उसकी शादी, ना उसके बच्चे, ना, तो फिर किस तरह से उसको अब्दियत का बाप कहा गया है. I remember I was out to lunch with a pastor who was a Trinitarian pastor, and I asked him this question from this scripture: how could Jesus, who was the Son of God, be referred to as the everlasting Father? मुझे याद है कि मेरा एक खाना था किसी एक पास्टर के साथ जो तस्लीस पर बिलीव करते थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि किस तरह से खुदावंद यीशु जो खुदा का बेटा है, वो अब्दियत का बाप हो सकता है. And he couldn't answer that question because he did not believe that Jesus was the everlasting Father. But it is very clear here in this scripture that his name shall be called the everlasting Father.
तो यहाँ वो इस सवाल का जो जवाब है वो नहीं दे पाए क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाए। यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा है कि वो जो सलामती का शहजादा है वो अब्दियत का बाप भी है। Let me tell you how Jesus, who was the Son of God, could also be referred to as the everlasting Father. Let me tell you how. तो मुझे ये बताने दे कि कैसे जब वो सलामती का शहजादा है तो उसके साथ वो अब्दियत का बाप है। मुझे बताने की इजाजत दीजिए। Because Jesus, the physical human body, was the Son of God, but सो the याद spirit, रहे but the spirit of life in the body was God Himself. याद रहे कि वो जो जिस्म है, वो जिस्म जो है वो खुदा का बेटा कहलाया, और वो जो अंदर है, जो रूह है, वो बाप वो है जो उसके अंदर है। You see, you must understand that God sought to redeem man from his sins. सो आपको ये समझना होगा कि खुदा ने किस तरह से इंसान को गुनाह से रिहाई बख्शी। And in redeeming man from his sins, it required the blood from a sinless sacrifice. और याद रहे कि गुनाहों से रिहाई के लिए जरूरी है कि एक खून हो जो गुनाह के बगैर हो, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं। The problem was that there was no man that was qualified that had ever lived to be that sinless sacrifice. तो मसला यहां पर ये है कि कोई इंसानों में इस काबिल नहीं है कि जो उसका जो खून है वो बगैर गुनाह के हो, जो नस्ल आदम से है या आदम की नस्ल से है। Because Adam sinned in the Garden of Eden, he couldn't be the sacrifice. Abraham, he lied earlier in his life and said that his wife was his sister. He couldn't be the sacrifice. Moses called the people of God rebels. He couldn't be the sacrifice. तो अगर हम आदम से शुरू हों और इब्राहिम और मूसा, ये इन सब की अगर जिंदगियों को देखें तो ये इनमें से कोई एक भी इस काबिल नहीं था। सब के सब बाइबल में जैसे लिखा ना, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। तो ये सब के सब गुनहगार थे, इस सबब से ये इस काबिल ना थे कि इनमें से किसी एक का खून बहाया जाए ताकि इंसान गुनाह की गुलामी में से बाहर निकल आ सके। The Bible says that God looked for somebody to help him fulfill this portion of his plan to redeem man, but there was nobody that could help him. जो खुदा ने जब देखा कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि जो कोई इस मामले को हल कर सके, यानी खून अपना खून बहा करके इंसान को गुनाह की गुलामी में से आजाद करे, बाहर करे, और ऐसा खून जो बगैर गुनाह के हो, तो खुदा ने देखा कि कोई नहीं है। Let's read about that. Let's read in Isaiah chapter 63 and verse number 5. चले इसको हम देख ही लेते हैं। यशायाह की किताब, यशायाह का सहीफा उसका 63वां बाब 63 and verse 5. और उसकी जो 5वीं आयत है, सफा नंबर 710, इसको हम देखते हैं। मैंने निगाह की और कोई मददगार ना था, और मैंने ताज्जुब किया क्या कोई संभालने वाला ना था। बस मेरी ही बाजू से निजात आई और मेरे ही कहर ने मुझे संभाला। God says, I looked for one to help, and there was no one that could help because no one was qualified to be the sinless sacrifice to redeem man from his sins. सो यहां पर लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैंने निगाह की और कोई जो मददगार ना था इस हवाले से कि कोई आए सामने, कुछ संभालने वाला ना था जो बगैर गुनाह की हो। So God says that my own arm brought salvation unto me. In other words, I had to do it myself. So फिर उसने कहा कि फिर मेरे ही बाजू से निजात है, यानी इसका मतलब है कि वो खुद से उसने खुद जा ये सोचा, ये कहा कि मैं ये करूंगा कि इंसान को निजात दूंगा। But the issue now
is that if the sacrifice would have to be, would have to die and would have to shed blood, that represented another problem for God, because God cannot die and God as a spirit does not have blood. सो एक और फिर अगर ये सोचा तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो किस तरह से अपना खून, क्योंकि इसके लिए मरना जरूरी था और मरे बगैर जो है खून बहाया नहीं जा सकता था। और लेकिन बाइबल तो क्या करती है, खुदा रूह है और रूह के यहाँ किसी तरह का कोई खून नहीं होता, वो किस तरह से बहाया जा सके। This is why God spoke to the womb of a young virgin girl by the name of Mary, and by his creative power, she became pregnant with a fetus, and God then stepped into the body of that fetus, and that body became Christ the Lord. God got in that body. और इसीलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक कुंवारी का जो है वो इंतखाब किया गया, ताकि उसके सबब से जो है वो जो एक कुंवारी से हमला होकर के बच्चा पैदा हो, ताकि उसके सबब से जो है वो निजात का बंदोबस्त किया जा सके। And this is why we read in the book of Hebrews chapter number 10 और इसीलिए जब हम इब्रानियों के खत और उसके 10वें बाब को जब हम देखते हैं, Hebrews chapter 10 and verse number 5, और उसके 10वें बाब की जो 5वीं आयत है, सफर नंबर 218 यहां पर लिखा है, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। when he, that is God, when God came into the world, he said to the human family, sacrifices and offering thou wouldest not, but a body you have prepared me. He got his body from the human family. इसलिए वो दुनिया में आते वक्त, यानी खुदा कहता है कि इंसान से बात करते हुए कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद नहीं किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया, ताकि उस बदन के सबब से कुर्बानी की जा सके। So why did God take on a body? He took on a body so that he, as the sinless sacrifice in that body, could die for the sins of the world. God, in his essence as God, could not do it. So he had to get a human body, occupy that body to fulfill his own plan. सो ये खुदा है जिसने वो बदन लिया, इख्तियार किया, ऐसा बदन जो गुनाह के बगैर था, जिसमें गुनाह न था, ताकि उस बदन के सबब से जो खून बहाया जाए, उसके सबब से इंसानी निजात का बंदोबस्त किया जा सके। So who was Jesus? Jesus was God in a body. सो यीशु कौन था? यीशु वो जो था वो उस जिस्म में था, ताकि उस जिस्म के सबब से कुर्बानी की जा सके। जो जिस्म के अंदर था वो यीशु है। Jesus was God manifested in the flesh, or God revealed in the flesh. और यीशु खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। Let's read Hebrews chapter number 1 and verse number Hebrews chapter 1 and verse number 3. और इसलिए हम इब्रानियों पहला बाब और उसकी जो तीसरी आयत है वो हम पढ़ते हैं, सफर नंबर 211। वो उसके जलाल का पर तो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। Jesus was the express image of God's person, or in other words, he was the invisible God made visible.
सो जो खुदा है यानी यीशु जो है वो उसके जलाल का परताव यानी वो नक्श है, उसकी जात का नक्शा यहाँ पर लिखा है, यानी वो खुदा जो नजर नहीं आता था जिस्म में नजर आने वाला ठहरा बेटे की सूरत में। He was the invisible God made seen. He was the image of God. He was God expressed as a man. सो वो खुदा जो नजर नहीं आता था जिस्म में आने की सूरत में नजर आने लगा, यानी उसने खुदा की जात का इजहार आपको नजर आएगा यहां पर। Now let's go to the book of Colossians, chapter number 1. और इस सिलसिले में हम जब कुलसियों के खत को देखते हैं और उसका जो पहला जो बाब है उसको देखते हैं, And let's read verses number 14 through 19. और उसकी जो 14 और से लेकर के 19वीं आयत तक, चैप्टर फर्स्ट पहले बाप और उसकी 14 आयत से देखते हैं कुलसियों के खत में। यहाँ पर लिखा है सफा नंबर 193 पर, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। आमीन। Amen. Now, we know it's talking about Jesus because in verse 14 it says, we have redemption through his blood, which is the forgiveness of sins. सो हम ये जानते हैं कि ये जो आयात है, ये जो कलाम आगाही बख्श रहा है, ये खुदावंद यीशु के वसीला से है, क्योंकि वही है जो बदन यानी कलीसिया का सर है। So we know it's talking about Jesus because we are saved because of the blood that he shed on Calvary's cross. सो हम ये जानते हैं कि ये खुदावंद यीशु के हवाले से है, क्योंकि ये वही है जिसने अपने लहू को कोहे कलवरी पर सलीब पर बहा दिया। Then in verse 15, remember we're talking about Jesus, who is the image of the invisible God. सो जब हम 15वीं आयत पढ़ते हैं तो इसमें वो बताता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत में जाहिर हुआ। In other words, Jesus is the invisible God made visible. सो हम ये देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यीशु अनदेखे खुदा को देखे जाने की सूरत में पेश कर रहा है, यानी नजर आने वाला है। Then in verse 16, for by him, that is by Jesus, all things were created. फिर हम 16वीं आयत में देखते हैं कि सब चीजें जो हैं वो उसी के वसीला से यानी यीशु मसीह के वसीला से ही पैदा की गईं। All things were created by him because Jesus was God in a body. सो हर जो तमाम जो चीजें हैं वो उसी के वसीला से पैदा की गई, क्योंकि यीशु मसीह जिस्म में था। In verse 17, and he is before all things. That is, Jesus is before all things, and the only way that that could be possible is that he has to be God in a body. और 17वीं आयत आगाह करती है कि वो सब चीजों से पहले है, और इसलिए सब चीजों से पहले है कि वो खुदा है। And then in verse 19, it says that it pleased the Father that in him should all fullness dwell. That is,
it pleased God to be in that body. सो 19वीं आयत आगाह करती है कि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में, यानी वो जो जिस्म है उसमें सुकूनत करे। ये बाप को पसंद आया। In other words, God was happy. He was pleased to be living, occupying that body, that human body that he called his son. सो ये दूसरे लफ्जों में खुदा को ये पसंद आया कि वो उस जिस्म में रहे जिसको बेटा कहा गया है, उसके वसीला से वो ये निजात का काम कर सके। Remember, the body of Jesus was the Son of God, but the Spirit of life in the body was God Himself. सो याद रहे कि वो जो जिस्म है वो खुदा का बेटा ठहरा है और जो उसके अंदर है वो बजाते खुद खुदा है। Now, let me pause there for any questions that may be on your minds. If you're not understanding anything or something's not making sense, are there any questions so far? मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रुकता हूं ताकि अगर आपके ज़हनों में कोई सवाल उमड़ रहा है, सवाल आ रहा है, तो आप उस सवाल को कर सके ताकि उसका हम जवाब दें और हम आगे बढ़े। कोई सवाल है आपकी नजर में, आपके ख्याल में, आपके ज़हन में, तो आप सवाल कर सकते हैं, प्लीज। Greetings once again. There are two questions on my mind, and the first one is, can we apply the avatar phenomena on the birth of Jesus? And the second question is, what we can consider the very the sin of human body or the flesh, whether it is the inherited sin or it is the sin of two physical bodies, woman and a man, and then they gave the birth a child. So what we can consider the sin? How can we separate this holy to unholiness, the birthing of a child from physical relation of man and woman? Thank you. Those are good questions, and let me answer. Pastor Frug, did you want to translate the question so that everybody understood what was asked? I want to request him to repeat those two questions. The first question was, can you relate God taking on a body to like an avatar, like what an avatar is today? An avatar is just like an AI image, picture, depiction of a real person. जो पहला जो सवाल पास्टर वसीम ने, जो हमारे काबिल कदर दोस्त हैं मुल्तान से, उन्होंने सवाल किया कि ये जो पैदाइश है वो लाइक एआई जनरेटेड जिस तरह से है, वो अवतार की सूरत में है जो पैदाइश है। आपका ये सवाल है, राइट? अवतार दूत सिस्टम, अवतार है दूत सिस्टम, यानी कि खुदा का कोई दूत पैदा हो जमीन में। जी, yes sir. Okay, so I would not equate what God did to an avatar, because an avatar it's not real. It's just a depiction. In the case of Jesus, Jesus was a human body, a real person. The flesh of Jesus was the same as yours and mine, with the exception that it had no sin. The life of that body, the spirit of life of that body was God Himself.
when God made us, he put a spirit of life within us. सो But याद है कि जो सॉरी yeah, टू कट यू, सो quite no याद है problem. कि जो एवतार है वो जो बॉडी है, वो एक फिक्शन है, एक जैसे जैसे फिल्म में वो दिखाया गया है, वो एक फिक्शन है। लेकिन जो जिस्म लिया गया वो हमारी तरह ही जिस्म है, जैसे हमारा इंसानी जो जिस्म है, सेम वही जिस्म जो है वो लिया गया है। But in the case of Jesus, God he didn't take a pinch of spirit of life and put it in the body of Jesus. In the case of Jesus, God himself stepped in that body. So that it became more than what we would refer to as an avatar. An avatar is just like represents a real person. But Jesus was not a representative of God. He was God revealed in the flesh. He was the invisible God made visible. और इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो जो जिस्म जो लिया गया है उसमें खुदा ने किसी और की जो रूह है वो पकड़ कर उसमें डाली है और वो आ गया, बल्कि ये खुदा है जो खुद उस जिस्म के वसीला से मैनिफेस्ट हुआ, जाहिर हुआ, और इस तरह से वो उसने जिस्म जो है वो लिया है। Now the second part of the question is, I believe, relates to how do you separate flesh from flesh? I'm sorry, could you repeat that second question, Pastor Wasim? Yeah, thank you for the first question. Yes, sir. And that was just for the acknowledgement. And because many of the theologians just prove that God has the avatar system, that because the angels are the avatars, the Michael, the Hal, and the Gabriel, and all. And so that is why that question was on my mind. And the second question, whether we can consider the birth of a child from a woman womb through the physical relation of man and a woman, can we consider it as sin? So if sin flesh is birthing, how can it be holy from a physical relationship of a man and a woman? Yeah. Or this sin was inherited Yeah. from the Adam and Eve? Okay. Thank you. दूसरा जो सवाल है पास्टर वसीम का, वो ये है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है फिजिकल रिलेशनशिप के सबब से, क्या वो गुनाह है, ठहर सकता है? Yeah. Okay. Yeah, I understand. So let me answer it this way, and let's go to the book of Romans, chapter number 5. रोमियो की तरफ हम चलते हैं और उसके 5वें बाब को खोलते हैं। And I'm going to answer your question like this, Pastor Wasim. पास्टर वसीम, आपके सवाल का जो जवाब है मैं उसका देने की कोशिश करता हूँ। आपके जो सवाल है 5वें बाब में से, रोमियो के खत में से, Romans chapter number 5 and verse number 19. 5वें बाब की जो I'm sorry. 19वीं आयत है, सफा नंबर 144। I'm sorry, Pastor, for verse number 12. ओके, जो 12वीं आयत है वो यहाँ पर यूं लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। Okay, so the fallen nature, we all inherited sin in our nature, and it was passed down from our father Adam. और याद रहे कि ये जो गुनाह है, ये गुनाह की जो सृष्टि है, जो इंसानी सृष्टि में आ गई, गुनाह की जो हालत है, वो आदम के सबब से, आदम ने गुनाह किया और उसके गुनाह में गिरने के सबब से आदमियों में गुनाह जो है वो सरायत करता चला गया। That's why he says, as by one man sin entered into the world. The world is not the earth, the world is humanity. So यहाँ पर इसी तरह इसलिए लिखा गया है कि एक आदमी के सबब से जो गुनाह है वो दुनिया में है। ये दुनिया जो है ये जमीन को नहीं जाहिर करता, बल्कि वो जो इंसान, नस्ल इंसानी है,
उसको जाहिर करता है कि गुनाह एक आदमी के सबब से नस्ल इंसानी में सरायत कर गया। And in the book of Isaiah, it says that our first father hath sinned. Our first father was Adam. और यहाँ पर जो बाइबल कहा करती है कि वो जो हमारे जो बावजदाद थे उन उन और वो आदम है, उसके सबब से गुनाह दुनिया में आया। So then we understand that the sin nature is passed down from our father. So if our first father have sinned, Adam had sinned, he तो याद रहे yep. तो याद रहे कि ये जो गुनाह की जो फितरत है, ये इंसानों में सरायत करती चली गई। पहले यानी पहला जो इंसान था यानी आदम, उसके सबब से गुनाह जो है वो मुतारफ हुआ और वो नस्ल इंसानी में उतर गया। So every person that was born in sin got their sin nature from their father, who got their sin nature from their father, and so forth, back on all the way back to Adam. So ये जो गुनाह है, ये इंसानों में सरायत करता चला गया, आया उधर से ही है, ऊपर से ही आदम, और आदम से नीचे से नूस, और फिर इस तरह से जिस तरह से नस्ल बढ़ती गई उसी तरह से गुनाह भी बढ़ता गया, सरायत करता चला गया नस्ल इंसानी में। Now, what made Jesus different? What made Jesus different is that his birth was not the result of a natural father. तो जो फर्क है खुदावंद यीशु के हवाले से, खुदावंद यीशु की पैदाइश का हमें और उसमें जो फर्क है, वो फर्क हमें जानने की जरूरत है। Let's go to Matthew chapter number 1 and verse number 20. और जब हम मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी जो 20वीं आयत है उसको हम देखते हैं, सफा नंबर 5 यहाँ पर लिखा है। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो कुछ जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। That which is conceived in her is of the Holy Ghost. Or in other words, the conception in Mary, the conception of Jesus was produced by not a natural father, but produced by the Holy Ghost. So, जो यहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि जो कंसीव किया गया है मुकद्दस मरियम की तरफ से, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि बाइबल कहा करती है कि वो रूह कुद्स की कुदरत से उसके पेट में है। So in other words, Jesus did not have an earthly father, therefore he did not inherit the sin nature passed down through an earthly father. तो इसका मतलब है कि खुदा यीशु का कोई जमीनी बाप नहीं है, और इस बाप से वो जो आ रहा था नस्ल दर नस्ल, वो वहां पर सिलसिला है नहीं, इस सबब से वो आगे मुंतकल हो नहीं सका। That's why I said the flesh of Jesus was the same as ours, with the exception that it had no sin, because he inherited his nature from his heavenly Father, which God, we know God has no sin. So इसलिए मैं कह रहा था कि वो उसका जिस्म और हमारा जिस्म एक जैसा ही है, एक तरह का ही है, सिवाय इस चीज के कि वो जो नेचर है, जो कंसीव हम करते हैं, उसने वो नहीं, क्योंकि ये जो कंसीव किया गया है ये पाक रूह की यानी खुदा की तरफ से है, खुदा बाप की तरफ से वो खुद जो आया है। Now let me give you one more scripture for that, and it's in the book of Jeremiah chapter 31 and verse 22. और हम एक और हवाला जो है वो यिर्मयाह की किताब का देखेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 31 and verse 22. और उसके 31 और उसकी जो 22 आयत है 31 बाब की, सफा नंबर 746 पर यहाँ पर लिखा है, ऐ बरगश्ता बेटी तू कब तक आवारा फिरेगी, क्योंकि खुदावंद ने जमीन पर एक नई चीज पैदा की है कि औरत मर्द की हमायत करेगी। Now he says that behold, I will do a new thing in the earth. In other words, I'm going to do something that has never been done before. तो उसने कहा कि मैं जमीन पर एक नई
चीज जो पहले कभी हुई नहीं है वो मैं बर्पा करूंगा, कि नई चीज पैदा की जाएगी। A woman shall compass a man. The word compass means go around the need for a man. सो जो औरत है वो मर्द की हमायत करेगी। And this is a prophecy concerning the virgin birth, Mary, because Mary was conceived Jesus without the need for a natural man, because the creative power of God made it so. और ये जो पेशगोई है ये मुकद्दसा मरियम के हवाले से है कि जो कुछ वो कंसीव करने जा रही है वो किसी मर्द के हमायत के बगैर है। Now, so does that answer your question, Pastor Wasim? Jesus, because he did not have an earthly father, he did not inherit the sin nature. He inherited his nature from the heavenly Father. Therefore, holiness was in him. He did not have any sin in him, and that's what made his flesh different from ours. चूंकि मसीह यीशु की Yes, पैदाइश के हवाले से जब हम देखते हैं तो वो उसमें कोई जो किसी मर्द का अमल दखल नहीं है, इसलिए वो जो हेरिटेज वो जो ऊपर से आ रही थी नस्ल दर नस्ल वो वहां पर है नहीं है, इसलिए वो बगैर गुनाह के। Thank you so much for the clarity and acknowledge that. Yes, sir. I'm truly very blessed with the answers. Praise God. Let me circle back to the avatar issue with the angels, because that's not what the scriptures teach. Angels are not avatars of God. Angels are created beings with free will. सो जो हम वापस उससे एवेटार की तरफ आते हैं, एवेटार जो है वो खुदा की तरफ से बनाए हुए एक फिक्शन है, लेकिन जो फरिश्ते हैं उनको अलग अलग खुदा ने बनाया है। If an avatar is just an expression, a representation, and avatars can only function as the one that is controlling them, their representation. They don't have individuality. They don't have free will. The angels, the Bible teaches that the angels have free will. तो एवेटार का जो कैरेक्टर है उसको तो कोई कंट्रोल करता है, कोई जिस तरह से वो उनको कहा जाता है वो करता है, लेकिन जो फरिश्ते हैं उनको जो फ्री विल दी गई है, उनको वो जो करने की जो सलाहियत है वो दी गई कि वो अपने आप से जो भी कुछ कर सकते हैं। Because we know that Satan was an angel in heaven called Lucifer, but he, based on his free will, defected. And when he defected, he influenced a third of the angels in heaven to follow him. And those angels are now the demons that are roaming the earth. और आप इस सिलसिले में जो एक मिसाल है वो लूसीफर की देख सकते हैं कि वो कैसा मुकर्रब फरिश्ता था। ये उसकी फ्री विल ही थी जिसके सबब से उसने खुदा से इनकार किया और ये सोचा कि वो अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी ऊपर ले जाएगा, और उसने इसी फ्री विल के तहत और जो आसमान के जो 1/3 फरिश्ते थे उनको अपनी तरफ लगाया और अपने साथ मिला लिया। If they were avatars, then they would not have done that, because God would not have permitted that. But they were not avatars. They were created beings, created spirits that God imbued them with free will, and they made their decision to defect, just like the other angels in heaven made their decision to continue to serve God and serve His will. अगर वो एवेटार ही होते, लाइक जिस तरह से कहा जाता है, तो फिर उनकी किसी तरह की कोई भी जो अपनी जो आजाद मर्जी वो ना होती और ना ही वो इस नहाज तक पहुंचे। पर चूंकि फरिश्ते जो हैं उनको अलग से पैदा किया गया है, उनको आजाद मर्जी दे करके, और इसलिए वो फरिश्ते हैं, और ये एवेटार का जो कैरेक्टर है वो अलग से है। Amen. So those are good questions. So बहुत अच्छे सवाल थे दोनों।
All right. Any questions? I'm happy to answer any questions. ओके, कोई और कुछ जो सवाल है? जी सर, मेरा एक सवाल है। Yes, sir. जी सर, मैं कुलसियों पहला बाप उसकी जो 15 आयत है कौन? उसमें सॉरी, यूं लिखा आपकी है आवाज गूंज रही है, किसी के बात ये माइक को लॉक है ना, वो आवाज। Somebody has two microphones on. I think brother Amir has two microphones on, maybe. हाँ जी, मेरा जो क्वेश्चन है सर वो कुर्सियों में से है कि उसमें लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, और आसमान की हो या जमीन की। अच्छा, सवाल ये है कि क्या वो जिस्मानी सूरत में था या किस सूरत में मौजूद था? कहाँ से आप अंधे की खुदा की सूरत पर मौजूद है? इफ्सियों के खत में पढ़ रहे हैं? सिर्फ कुर्सियों पहला बाप। Oh, okay. Kulsiyon, the book of Colossians. Yes, sir. Question from book of Colossians, chapter. Yes, chapter 1, verse from 15. Yes, sir. अनदेखी खुदा की. The question is, yes, आमिर साहब दोबारा से जरा कर दे प्लीज, कि how he was there. How was he what? आमिर. जी सर, सर मेरा सवाल ये था कि इसमें जैसे लिखा है कि वो पहले से मालूम था, तो वो किस कंडीशन में था? क्या जिस्मानी कंडीशन में या किसी रूहानी कंडीशन में मौजूद थे वो? How he was there, in spiritual way or in other way? Well, When you read verse 15. Yeah, so the body was not there, right? The human body of Jesus was not there. The human body of Jesus did not come along until until Mary produced him. But the spirit of life that was in that body was God himself, and God has always been here. So याद रखिए कि अगर हम जिस्म के हवाले से सवाल करते हैं तो जिस्म तो उस वक्त ना था, जिस्म तो बाद में जब वो हम बत्ती की इंजील में देखते हैं जैसे वो पैदा हुए तो फिर, लेकिन ही वाज वो जो स्पिरिट ऑफ लाइफ की सूरत में वहां पर मौजूद थी. So remember, when we talk about Jesus, we're talking about a dual nature. He was 100% God and 100% human. He was both human and divine. So याद रखें कि खुदा की जो दोहरी फितरत है, आप उसको समझना होगा कि वो खुदा भी है और वो इंसान भी है जब वो बॉडी में है. As a man, Jesus had a beginning when he was born, but as God, he has neither beginning of days nor end of life. So he's always been here. He always will be. That's why the scripture calls him in Isaiah 9:6 the everlasting Father. So जब हम दोहरी फितरत के हवाले से बात करते हैं खुदा यीशु की, तो जो वो 100% इंसान है और 100% खुदा है, तो खुदा होने की हैसियत से तो वो हर वक्त यहाँ पर मौजूद है अंधे के खुदा की सूरत पर. लेकिन जब हम जिस्म की बात करते हैं तो जिस्म का तो शुरू है, जिस्म और वो मुकम्मल इंसान जो उसका एक शुरू है, लेकिन खुदा का कोई शुरू नहीं है. खुदा तो पहले से ही मौजूद है. जब कुछ ना था, जब कुछ तो था, जैसे बाबा जी ने कहा ना, कुछ तो था जब कुछ ना था, जब कुछ ने क्या से क्या कुछ कर दिया, तो वो तो अनदेखी खुदा की सूरत में पहले से मौजूद है. So, Brother Amir, does that answer the question? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. All right. These are very, very good questions. So आपके बहुत अच्छे सवाल हैं जो आप कर रहे हैं.
Any additional questions? No issue. We can answer all questions to the best of our ability. वो ये अब ये एक और बात यहाँ पर है। अब मुझे पता है आप कहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो अंधे के खुदा की सूरत में पहले से मौजूद था। अब ये जो सूरत है ना, वो बयान कर रहा है कि वो यानी जो खुदा है अंधे का खुदा, उस सूरत में या उस शक्ल में तो वो पहले से मौजूद है, यानी तमाम मखलूकात से पहले। ये तो उस हवाले से बयान कर रहा है कि वो पहले से एग्जिस्ट करता है अंधे के खुदा की सूरत में। यानी अंधे के खुदा की सूरत क्या हो सकती है? ये एक फॉर्म है, जुमला है जो एक्सप्रेस करता है कि खुदा के होने को, कि खुदा पहले से मौजूद है। All right. Well, if there be no other questions, any other questions? सो अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सवाल है तो प्लीज। All right. Well, God bless you. If there be no other questions, we hope and pray that you got a full understanding of what was taught today. And the doctrine of the oneness of the Godhead, it is a very deep subject and it requires a lot of scripture. So that's why we're walking through it the way that we are. ऑलराइट, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे और आपको हिकमत बख्शे ताकि हम खुदा की कलाम को और बेहतर तौर पर जान सकें। आपको पता ही है कि किस तरह से हम खुदा की कलाम की स्टडी कर रहे हैं। Amen. Lord willing, we are looking forward to being back in Pakistan in just about 10 days, 10, 11 days. So we look forward to seeing everyone again. I do intend on having the class next Saturday. And then after that, we will be in Pakistan. So God bless you. Thank you so much for your attention again. अगले हफ्ते फिर क्लास होगी और उसके बाद फिर खुदा की मर्जी से आपके दरमियान होंगे ताकि आपको बिल मुशाफा आपसे मुलाकात हो सके। All right. If that is all, then we can close out in prayer. Pastor Farouk, if you wouldn't mind doing us the चलें हम आज के सेशन को खत्म इख्तिताम देते हैं और दुआ करते हैं पास्टर प्रभु के साथ मिलकर के। खुदा दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस लम्हे के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे हुजूर आ सके। तेरे बंदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, जिसके वसीला से तू हमसे हम कलाम हुआ खुदा। उन सब बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है खुदा, तो बरकत दे ताकि हम तेरे कलाम में और तुझ में आगे बढ़ने वाले हों, तुझको जानने वाले हों। दिन ब दिन, रोज बरोज आए खुदा तुझे मजबूत होते जाएं। तू रहम कर और बड़ी बरकत बख्श यीशु के नाम से, आमीन। I think Pastor Wasim from the Central Church wanted to say something. Yes, sir. Oh, hello, Chairman sir. Hello, sir. Sir, good evening. Good evening. Hey. Wonderful preaching. Thank you. Yes. Amen. Thank you. That really encourages me, and thank God for the truth. And should we close with the Lord's Prayer? क्या हम खुदावंद की दुआ के साथ खत्म कर सकते हैं? आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब हिस्सा लेंगे प्लीज। Okay. पास्टर वसीम, प्लीज। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बात तेरी मर्जी जमीन पर हमारे रोजाना की याद में और जिस हम अपने घर को माफ कर, तो हमारी कर्ज हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि क्योंकि बात खुद रिकॉर्ड आमीन। Okay. Amen. Thank you. बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। खुदा हाफिज। Amen. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Take care. Thank you.